Hello CUT UG 2025 aspirants. So forms are out. We have discussed in detail the step-by-step process of filling the form, and we also advise you to wait for a couple of days so that university notifications and their subject combinations and eligibilities are out. Now NTA has released a document, and as per that document, there are major changes as far as eligibility conditions for certain programs in Delhi University is concerned. So we will discuss that. University of Delhi eligibility subject combinations as per the NTA document. Let's see the document first. Now, this is ntacut.nta.nic.in website. Till 2nd of March, this universities tab was not there, and from 3rd March, this tab is there. So once you click this, the detailed documents regarding Central University, State University, they are opened, right? And if you click Central University, and if you see the document, now see BHU, Banaras Hindu University. If you see BA LLB honors, B honors LLB, 5-year integrated program. Now, since legal studies has been removed from the domain list, and in lieu of legal studies, now general aptitude test will be considered. As you can see, BLLB honors in BHU, the admission will be through language test, English or Hindi, and general aptitude test. In this list, University of Delhi is there, right? All the undergraduate programs are listed with their combinations. Let's discuss this in detail now. University of Delhi. Now, first and foremost, since last year, the University of Delhi divided the domain section in B1 and B2, and also the language part in two parts, right? The 13 languages and the remaining 20 languages. Since this year, there are now 13 languages only as far as languages section is concerned. So, University of Delhi has divided into three, the detail of the subjects of CUT UG in three parts: List A, List B, and General Aptitude Test, GAT. So list A is all 13 languages, English, Hindi, Assamese, Bengali, so on and so forth. List B is all the domain, 23 domain subjects, 13 languages. So 23 plus 13 is 36, and one general aptitude test. So total 37 subject combinations for this year. Now CUT and NTA, they discussed, they said that any student can give any subject paper, whether that student has that subject in 12th or not. But this is the Delhi University guidelines, and it has not changed. It is mandatory for the candidates to appear in CUT 2025 in those subjects in which he is appearing has passed class 12th. So अगर आपके पास मैथ्स नहीं है 12th में, तो CUT में मैथ्स तो दे सकते हो as per NTA, but Delhi University will not consider your math subject since you have not appeared for maths in your board examination. So it's very clear. Let me read it very clear for Delhi University. It is mandatory for the candidates to appear in CUT 2025 in those subjects in which she is appearing has passed class 12. So Delhi University is fixed on this eligibility. तो आप वही subjects आपके CUT में कंसिडर किए जाएंगे जो आपके पास 12th में है. क्लियर? और कोई यूनिवर्सिटी जैसे बनारस यूनिवर्सिटी ने ऐसा अभी तो ऐसा नहीं कहा है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ऐसा क्लियरली मेंशन किया है. अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी. द बिगेस्ट चेंज इज बीकॉम ऑनर्स, एंड दिस इज एज पर द एनटीए डॉक्यूमेंट. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. दिस इज एज पर द एनटीए डॉक्यूमेंट. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अभी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आया यूजी का. लेट्स सी वो क्या कहता है, बट दिस इज मोस्ट लाइकली कि यही रहने वाला है, क्योंकि एनटीए डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटी होगा, but this is as per NTA document. Let me make it very clear. It's a disclaimer. It's as per NTA document. Combination 1 BCom honors, any one language from list A plus mathematics, applied mathematics, plus any two subjects from list B. तो लास्ट ईयर तक जो स्टूडेंट्स जिनके पास अकाउंट्स था वो भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते थे एसआरसीसी से या हंसराज कॉलेज से या एलएसआर से. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एज पर एनटीए डॉक्यूमेंट कहा है कि फॉर बीकॉम ऑनर्स मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी होगा.
merit will be based on the best CUT scores obtained in from any of the above mentioned combinations. और डॉक्यूमेंट में केवल कॉम्बिनेशन 1 ही लिखा हुआ है बीकॉम ऑनर्स का, और कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ है. बाकी प्रोग्राम्स के लिए कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 भी है, बट बीकॉम ऑनर्स में डॉक्यूमेंट में कॉम्बिनेशन 1 ही है. इज कॉम्बिनेशन 2 मिसिंग? No idea about this. We will have to wait and watch that Delhi University when it releases its bulletin of information for UG. But यही लग रहा है as of now कि BCom honors, for BCom honors you need to have mathematics. तो इसलिए लाइफ और थोड़ी सी सिंपल हो जाती है. जिनके पास मैथ्स है तो वो BCom honors के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और BBA FIA फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और BMS उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब वो अकाउंट्स और मैथ्स का जो कंफ्यूजन था कि कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए CUT में, आई थिंक दैट इज क्लियर. सो इफ यू हैव मैथ्स देन यू कैन अपीयर फॉर BCom ऑनर्स, एंड इफ यू डू नॉट हैव मैथ्स तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, BCom ऑनर्स में आप जा ही नहीं सकते हो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. BCom देखते हैं. कॉम्बिनेशन 1 एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A plus any 3 subjects from list B, or combination 2 any one language from list A plus any one subject from list B plus section 3 of CUT. तो दो तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है. one language any 3 subjects, one language one subject from B, and general aptitude test. So the combination which we at IMS mentors are been discussing is कि आप एक लैंग्वेज दीजिए, 3 डोमेन्स दीजिए और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. तो 5 मैक्सिमम आप पेपर दे सकते हो. तो यही कॉम्बिनेशन बेस्ट है. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके बहुत ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं. जैसे देखिए BCom, someone do not having maths in 12th, वो BCom तो कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन BCom ऑनर्स नहीं कर सकता है. लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से और कॉम्बिनेशन भी खुलते हैं, BCom का कॉम्बिनेशन ओपन होता है. देखिए, और ये दूसरे कॉम्बिनेशन से फायदा क्या होगा, सपोज आपका कोई डोमेन पेपर में कम मार्क्स आते हैं CUT में, तो और अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई एक पेपर में डोमेन में कम आते हैं तो GAT के थ्रू आप वो कवर कर सकते हो. मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर obtained from any of the above mentioned combinations. As the weightage of CUT section is not the same, appropriation will be done. So इसका भी मतलब समझाता हूं आपको. जैसे BCom ऑनर्स में एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस 2 डोमेन्स, तो 4 पेपर इंटू 250, क्योंकि अब 250 मार्क्स का पेपर है हर. So 1000 मार्क्स से मेरिट बनेगा एज फार एज BCom ऑनर्स इज कंसर्न्ड. पर BCom में 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं. 1 लैंग्वेज 3 डोमेन 4 इंटू 250 1000 मार्क्स, और 1 लैंग्वेज any one subject from list B, 1 language 1 domain and 1 general aptitude test means 3 into 250, तो 750 मार्क्स से भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. और आपका जो बेस्ट होगा दोनों में वो आपको वही कंसिडर किया जाएगा. So it's always good to have general aptitude test. Now the management programs under the university, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में BBFIA है, BMS है. So BBFIA, BBE, BMS, इसमें any one language from list A plus maths, ये तो लास्ट ईयर भी था, plus section 3 which is general aptitude test. Merit will be based on the CUT scores obtained from the above mentioned combination classes. इसमें क्या होगा, 1 language plus maths plus 1 GAT which is 3 into 250, 750 मार्क्स का ये टोटल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है. टोटल मार्क्स 750 बनते हैं. तो मैथ्स के साथ और GAT के साथ तो ऑब्वियसली ऑप्शंस ओपन होते हैं. जो अगर मैथ्स नहीं है तो सारे प्रोग्राम जिसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं है वो आप अप्लाई कर सकते हो. यू शुड नॉट लूज हार्ट कि अगर मैथ्स नहीं है तो आप BCom ऑनर्स नहीं कर सकते हो. अरे भाई, और भी तो बहुत ऑप्शंस हैं, BCom भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. BA के बहुत ऑप्शंस ओपन होते हैं. BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन 1 एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B. अब यहां पे भी कॉम्बिनेशन 1 नहीं था डॉक्यूमेंट में. क्या यही है कि कॉम्बिनेशन 1 मींस दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन as far as BCom honors and BA honors economics is concerned? I think this is the final document. But let's see Delhi University का जब bulletin आता है. So combination 1 any one language from list A plus maths applied maths plus any discourse from list B. This is BA honors economics. Maths is compulsory for BA honors economics from Delhi University. Merit will be based on the best CUT scores obtained from any of the mentioned combination. ये document से ही मैंने pick किया है, लेकिन एक ही combination है BA honors economics में. BA honors English में 2 combination है. Either you can be eligible from combination 1 which is English from list A plus any 3 subjects, or English and 1 language from list A plus any subjects. So someone having let's say English as well as let's say Hindi in 12th, तो वो 2 languages भी fill कर सकता है for BA honors English के लिए, and any 2 subjects from B.
ठीक है, तो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन के थ्रू भी आप बीए ऑनर्स इंग्लिश अप्लाई कर सकते हो। बट बेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें मैंने कहा 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ऑटोमेटिकली हो ही जाते हो। बीए ऑनर्स हिंदी, हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, और हिंदी एंड 1 लैंग्वेज अदर देन हिंदी प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। तो देख लीजिए बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए या तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन या इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन्स, और बी ऑनर्स हिंदी के लिए हिंदी प्लस 3 डोमेन्स और हिंदी एंड 1 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज के प्रोग्राम देखते हैं। ये बहुत ओपन प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रीम न्यूट्रल हैं, तो सबके मोस्टली स्टूडेंट्स ये इसमें एलिजिबल हो ही जाएंगे, आई गेस सभी हो जाएंगे एलिजिबल। देखिए अब B1 B2 का कॉम्बिनेशन का डिवीजन ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन अलग है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ बाकी सारे का देखते हैं। कॉम्बिनेशन 1, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। देखो मैंने बीए प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है, ये स्ट्रीम न्यूट्रल है, एवरीवन इज एलिजिबल, बट बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन ये नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। सो अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, बीए ऑनर्स फिलोसफी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। कॉम्बिनेशन 1, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, सो 1 प्लस 3 डोमेन, और एनी 2 लैंग्वेजेस प्लस 2 डोमेन। ठीक है, अभी बीए प्रोग्राम भी देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। So this is BA प्रोग्राम। तो BA प्रोग्राम में आप 3 कॉम्बिनेशन से अप्लाई कर सकते हो। कॉम्बिनेशन 1, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, दैट मींस 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, 2 लैंग्वेजेस 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी एंड सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। राइट, सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपका कोई डोमेन में कम मार्क्स आते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड से वो कवर भी कर सकते हो। जीएटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर obtained from the any of the above mentioned combinations. As the weightage of CUT section is not the same, appropriate proration will be done. BA program combination where mathematics, statistics, computer applications, computer science is one of the 2 core disciplines. It is mandatory that the candidate must have studied and passed mathematics in class 12 examination. Similarly, wherever language is being offered as one of the 2 disciplines, the candidate must have a working knowledge of that language. तो तीनों कॉम्बिनेशन का टोटल मार्क्स देख लेते हैं। 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन, दैट मींस ये 1000 मार्क्स हो गए। और 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हो गया आपका 750 मार्क्स। 1 लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट एंड सेक्शन 3 750 मार्क्स। तो इधर 1000 मार्क्स और 750 मार्क्स, और आपका जो कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा, जिसमें मार्क्स बेटर रहेंगे, आपको वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वापस उसी पे डिस्कस करते हैं। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो गया डिस्कस, इस पे डिस्कस करते हैं। बीए प्रोग्राम मैंने डिस्कस कर लिया है। ऑल अदर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस प्रोग्राम्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स, और 2 लैंग्वेजेस प्लस 2 सब्जेक्ट्स। क्लियर? This again very good combination programs. BSc honors in computer science or in mathematics or in statistics. Combination 1, any 1 language from list A plus maths, applied maths plus any 2 subjects. So 1 language plus maths compulsory plus 2 subjects. That means someone from humanities or commerce background but with maths can opt for BSc honors computer science or BSc honors statistics or BSc honors mathematics. It is not only these programs are not only for science students. They can also obviously apply if they have mathematics, but it is open for others also if you have mathematics. Combination 2, any 2 languages plus maths plus any 1 subject. So with 2 languages, 1 maths and 1 subject, you can apply. Again, I am reinforcing the best combination is 1
language plus 3 domain, and if you have maths you should definitely go for maths because now BCom ऑनर्स का भी maths है, तो maths और accounts में से आप maths ही opt करो अगर आपको opt करना है. Obviously maths consider करेगा ही करेगा Delhi University for BCom honors. So if you have maths 1 plus 3 domain plus general aptitude test, these 5 papers, this is the best combination which we are guiding students. So merit will be based on the best CUT scores obtained from any of the above mentioned combinations. ठीक है, क्लियर हो गया तीनों प्रोग्राम. B honors journalism combination 1, English from list A plus any 3 subjects from list B, or English from list A plus section 3 of CUT. So language plus 3 subjects 4 into 250 1000 marks का या तो बनेगा subject total marks, या English language because it's B honors journalism, it's English plus section 3 of CUT, which means ये बन गया आपका 500 मार्क्स का कॉम्बिनेशन. देखिए जनरल टेस्ट, और अगर आपका इंग्लिश और जीटी में बहुत अच्छा स्कोर है और बाकी डोमेन में अच्छा नहीं है तो आप भी जर्नलिज्म के लिए भी 500 मार्क्स के थ्रू, अगर आपका ज्यादा है तो आपको वो कंसिडर किया जाएगा और प्रोरेशन किया जाएगा, प्रो रेटा बेसिस पे किया जाएगा. Merit will be based on the best CUT score obtained from any of the mentioned combination subjects. As the weightage of CUT sections is not the same, appropriate proration will be done. BTech, IT and MI, this is again a very good program. ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स इज कंपल्सरी प्लस सेक्शन 3, सो 750 मार्क्स का ये कॉम्बिनेशन बनता है. नाउ अगेन अगर आपके पास मैथ्स है एंड यू आर अ नॉन साइंस स्टूडेंट वेदर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और अकाउंट्स और कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड, यू आर अ नॉन साइंस स्टूडेंट, इवन इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, इफ यू हैव मैथ्स विद यू, आप बीटेक कर सकते हो. देखो आप बीटेक कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑप्शन आपको ओपन कर देता है. ठीक है जी, क्लियर हो गया. देन BWalk सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दिस विल बी सॉफ्टवेयर, sorry for this error, this is software development. So BWalk software development combination 1, 3 combinations, any one language plus maths plus any 2 subjects from B1, language plus maths plus 2 subjects, any 2 languages maths plus any 1 subject, और एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. 3 तरीके से कर सकते हैं और प्रोरेशन बेसिस पे होगा. क्लियर है जी? ओके. देन BWalk बैंकिंग ऑपरेशंस और रिटेल मैनेजमेंट आईटी, और BA इन वोकेशनल स्टडीज, ये भी प्रोग्राम है. इसमें 2 कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन 1 एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, और एनी 2 लैंग्वेजेस प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स, और थर्ड कॉम्बिनेशन एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट बी प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT. ठीक है जी, तो ये भी लिस्ट बी होना चाहिए. ये मैंने ना एक्चुअली कॉपी किया डॉक्यूमेंट से, वहां बहुत एरर्स हैं डॉक्यूमेंट्स में, एप्टीट्यूड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, बहुत एरर्स हैं, बट चलो क्या कर सकते हैं. ये देखिए यहां पर मैंने कॉपी किया था वहीं से, फ्रॉम ईदर लिस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉम लिस्ट बी ही होना चाहिए, और ये एप्टीट्यूड, और डॉक्यूमेंट से मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, बट ये डॉक्यूमेंट में काफी एरर्स हैं. तो BWalk और BA वोकेशनल स्टडीज, ये प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हो, 3 कॉम्बिनेशंस हैं. BA प्रोग्राम मैंने डिस्कस कर लिया है. साइंसेस के कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो. BSc ऑनर्स बॉटनी और जूलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री. मेरिट विल बेस्ड ऑन द CUT scores obtained from the above mentioned combination of subjects. Candidates must appear in any one language from list A in CUT. देखिए जो मेरिट बनेगा BSc ऑनर्स बॉटनी और जूलॉजी में, वो बनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस इसमें से कोई एक पेपर 3, विच मीन 750 मार्क्स से मेरिट बनेगा. बट लैंग्वेज में अपीयर होना कंपलसरी है, लैंग्वेज में अपीयर होना कंपलसरी है. उसका मिनिमम परसेंटेज, जैसे लास्ट ईयर इट वाज 30%, आपको लैंग्वेज में लाना ही पड़ेगा. तो इस बार अभी लेट्स सी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब डॉक्यूमेंट आएगा, कंप्लीट बुलेटिन आएगा, लेकिन लैंग्वेज देना कंपलसरी है. दो मेरिट विल बी फ्रॉम 3 पेपर 750 मार्क्स, बट लैंग्वेज में अगर आपने लैंग्वेज ही नहीं फिल किया है तो आप BSc ऑनर्स बॉटनी जूलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं बनते हो. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, आई रिमेंबर, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों फिल किया हुआ था, बट लैंग्वेज उन्होंने ऐसे पढ़ा और कंप्लीटली पढ़ा नहीं, लैंग्वेज उन्होंने फिल ही नहीं किया, तो DU के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं रहेंगे. BSc ऑनर्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स,
और कैंडिडेट्स मस्ट अपियर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट इन CUT. मेरिट बनेगा 3 पेपर्स में 750 मार्क्स में से, बट लैंग्वेज कंपलसरी है. So this was about this session. All the best. Stay tuned with IMS CUT channel. Information आती रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे. God bless you and thank you.